So hi, I'm at Bori right now. This is Bori grassland, the entire area that you can see behind me. First is the Barasinga Bada enclosure, and then apart from it, it's a huge grassland around 350 hectares. Out of which around 40 to 50 hectares is the Bada, rest is the open grassland. There are around 89 90 Barasingas in open and around 25 in the Bada. Uh, Almost 16 to 17 lakes in this area, and out of which again right now around 5 to 6 lakes are like where there is no way of filling up water. The water is filled either by tanker or by the diesel engines. So what we are proposing is that those 5 lakes we will be putting in 5 small 1 HP systems for each lake and give the water, because these are very big size lakes. So one system would be only sufficient for one lake, and there is a river out there, so we'll be taking the water from the river and giving it to the lake. uh, Especially Barasinghas, if you see, they are their major food is the aquatic plants that they eat. So they need actually a lot of lakes here so that they can actually grow, and that is the reason this is the major breeding ground of Barasinghas in this entire Satpura Tiger Reserve. Barasinghas, they breed here and they then are moved out to the other areas as well in this forest. So I believe by giving water to these places, we will do a lot for raising the number of Barasinghas in Satpura Tiger Reserve and in the country, I would say. And because it's a lovely grassland, it's a perfect landscape for Barasinghas. They will really grow nicely. So we want to give water to a lot of water bodies here, and we'll be very happy to do 5 to 6 systems in this area. Thank you. So हम कंपार्टमेंट नंबर 14 बाड़े के बाहर खड़े हैं. So what he's telling me is that in summers they use a diesel engine here to give water inside the bada to make the grass green while by using sprinklers and all. But they are willing to do away with the diesel pump and diesel engine, and they want to just leave away the water inside for the lake, which is one there inside, plus also open in the grassland to regenerate the grassland as well. तो आप एक बात बताएं, अपना जो ये डीजल इंजन चलता है, ये कितने महीने चलता है? ये सर लगभग पूरी गर्मी 3 से 4 महीने. पूरी गर्मी 3 से 4 महीने चलता है. और आपका एक दिन का डीजल कंजम्पशन यहाँ पे कितना लीटर का है? ये सर लगभग 8 से 10 लीटर पर डे. 10 लीटर इंटू 30 दिन हो गया 300 लीटर अपना. नहीं है ना, तो कम से कम अपना 1000 से 1200-1500 लीटर के आसपास का हमारा ये हर साल का डीजल का कंजम्पशन है जो हो रहा है. तो अगर मैं 1500 लीटर की बात करूं तो 100 रुपए के हिसाब से लगा लें, तो अपना आप साल का यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस कर रहे हैं, जो अगर हम सोलर सिस्टम लगा देंगे तो वो उसकी कॉस्ट इससे कम में ही निकल जाएगी, और उसके बाद कभी भी डीजल इंजन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो हम जो बोरी का कंप्लीट ओवरऑल वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट आउट हियर, बिकॉज एज आई सेड देयर आर 4 डिफरेंट बिग लेक्स आउट हियर. So we will give 4 different systems for these 4 big lakes out here and create a comprehensive project for Bori for Barasinga management, especially because as I again said in my previous video that this place has the potential like Kanha to not only give Barasingas in this Satpura Tiger Reserve, but to give Barasingas in future through this Bada to the other places in our country as well. Thank you. So, हम ये जो तालाब देख रहे हैं सर अभी जी, ये कंपार्टमेंट नंबर कौन सा है? ये कंपार्टमेंट नंबर 13 है. मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ देख रहा हूँ जनरली ऐसा होता भी है, बारासिंघा के लिए बहुत सारे तालाब बनाए जाते हैं. जी सर. तो पहली चीज आप मुझे बताएं सर, हमारे डोनर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि ये ग्रासलैंड कितना बड़ा है, पूरा बोरी ग्रासलैंड है? ये सब बारासिंगा के लिए जो डेवलप किया गया है वो पूरा लगभग 300 से 350 हेक्टेयर के बीच में है. जी, तो काफी बड़ा जी ग्रासलैंड सर. है. जी सर. उसमें अभी कितने तालाब होंगे यहाँ पर? ये सर बाहर लगभग 10-11 तालाब बाहर है. अच्छा, और बाड़ा भी है आपका? बाड़े में भी है सर. बाड़े में करीब 7 तालाब हैं. कुल मिला के व्हाट यू आर सेइंग इज कि यहाँ पे करीब 16 से 17 तालाब हैं. जी जी. और ऐसा क्यों जरूरी है बारासिंगा के डेवलपमेंट के लिए कि हमको हर तालाब में हमेशा हर समय पूरा पानी भरा होना चाहिए? आप थोड़ा सा ये हमारे को समझाएं. वो बारासिंगा क्या है सर, वो उसको एक्वाटिक प्लांट्स जो रहते हैं
उसकी ज़्यादा नीड रहती है। ओके, उसकी और एक्वाटिक प्लांट्स पानी में ही होंगे, करेक्ट। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तालाबों इसलिए की नंबर ऑफ ज़्यादा। जी, तालाब हम ज्यादा ज़्यादा बना रहे हैं यहाँ बनाते पे, हैं। जी और सर। उसमें हमेशा पानी होना जी। चाहिए, आपको कोई भी तालाब सूखना नहीं चाहिए। जी सर। तो आप जो बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे 5 से 6 तालाब अभी हैं जिसके अंदर पानी सूख जाता है और आपको टैंकर से पानी जी डालना सर। पड़ता है या जी, इंजन से पानी डालना जिसमें पड़ता से यही तालाब जो देख रहे हैं, ये अभी लगभग 2 महीने या 2.5 महीने में इसका पानी है, चला जाएगा। चला तो जाएगा। आप तो अगर हम ऐसा करें कि हर तालाब के लिए एक छोटा 1 HP का सिस्टम दे दें जो लगातार हर तालाब को पानी नदी से दे के देता रहे, जी। तो ये तालाब हमेशा भरे रहेंगे। जी सर। तो उससे एक फायदा और होगा। अभी यहाँ पे अपने पास टोटल कितने बारहसिंगा हैं? अभी सर 89 समथिंग काउंटिंग में है। और बाड़े में कितने बाड़े होंगे? में सर 25 है। तो करीब 125 के आसपास अपने जी पास सर। बारहसिंगा हैं। और अगर हमेशा यहाँ पानी रहेगा तो इनका नंबर भी ग्रो करेगा। जी सर। अच्छा, दूसरी एक बात मैं देख रहा था कि यहाँ पे सरप्राइजिंगली थोड़े चीतल कम है। जी उसका क्या कारण है? सर, यहाँ बस मेन कारण यही वाइल्ड डॉग्स का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, मूवमेंट यहाँ है। ढोल का बहुत मूवमेंट जी, मूवमेंट है। इस वजह से। कितना बड़ा ग्रुप है यहाँ जनरली ढोल का? ढोल का सर अभी तक देखा गया 12 से 15 के बीच में। तो सर आप ये बारहसिंगा की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं यहाँ पे फिर? यहाँ पे सभी लोग हैं जो अलर्ट रहते हैं ढोल से, जो अटैक करने के लिए रहते, तो उनको खदेड़ा जाता है यहाँ से? जी थोड़ा सा उनको अलग किया जाता है बारहसिंगा ठीक। से। थैंक यू। Bori grasslands, complete view from here.